हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर्स लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की मांग थी, इच्छा थी कि सर एमसीक्यू क्वेश्चंस पर वीडियो बनाइए। जो लेसन के बाद या लेसन के पीछे, चैप्टर के पीछे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को छोड़कर मैंने कम से कम एक 40 या 55 क्वेश्चंस के यहाँ बनाया हूँ। और वो एमसीक्यू क्वेश्चंस लेसन्स के बीच में से लेकर बनाया हूँ। वो नए प्रश्न है और नए आंसर है। सो आपके लिए ये यूजफुल होगा। अगर पेपर सेट करने वाले अगर लेसन के बीच में से अगर कोई प्रश्न अगर देंगे, ये भी हो सकता है कि बीच में से भी प्रश्न देंगे, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर में लेसन के बीच में से ही प्रश्न क्या पूछे हैं। सो उसी को ही दृष्टि में रखकर मैंने कम से कम एक 55 क्वेश्चंस के यहाँ बनाया हूँ। और लेसन के पीछे जो क्वेश्चंस दिए वो क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ लीजिए। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही क्या यूजफुल है। और आप लोग ये ना सोच लीजिए सर आपने जो दिए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स, यही क्वेश्चन आंसर्स एनुअल एग्जाम में आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट, आते भी हैं, नहीं भी आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनमें से कुछ आ जाएंगे, कुछ नहीं आ जाएंगे। और आप लोग ये ना सोच लीजिए कि इसी में से ही प्रश्न आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ भी है और ना भी है। तो इसलिए चैप्टर के पीछे जो दिए वो भी पढ़ लीजिए। मैं आपको जो 55 एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर्स समझा रहा हूँ वो भी आप लोग पढ़ लीजिए। तो बहुत ही क्या ये, ताकि आप लोगों को लेसन के अंदर घुसकर क्वेश्चन और आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न और आंसर्स क्या रेडी किया हूँ और आपके लिए ಯೂಸ್ಫುಲ್ होगा। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ। ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ। ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ। 10 ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ in which lesson they will ask objective type questions or MCQ questions, multiple choice questions. ಇದು ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ। ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ। ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। 10 ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಯಮು ಇದೆ, ನಾಟಕವೂ ಇದೆ, ಅದರ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ 10 ಲೆಸನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ, ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಗಂಗಾ ಮೈಯಾ ಸೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದೆ, ಎರಡಾಯ್ತು। ಏಕ್ ಕಹಾನಿ ಯಹಾ ಭಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದೆ, 3 ಆಯಿತು। ಆಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಕಿ ದಾವತ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯಿತು। ಆಮೇಲೆ ಯಾತ್ರಾ ಜಪಾನ್ ಕಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 ಆಯಿತು। ಸೂರ್ದಾಸ್ ಇದೆ ಪೋಯಮ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ, ಗಹನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ। ಆಮೇಲೆ ಕಾಯರ್ ಮತ್ಮನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸೂಕಿ ಡಾಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಶೋಧ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದೆ। ಟೋಟಲು 10 ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, MCQ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ಸುಜಾನ್ ಭಗತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನು, ಗಂಗಾ ಮೈಯಾ ಸೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನು, ಏಕ್ ಕಹಾನಿ ಯಹಾ ಭಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನು, ಚೀಫ್ ಕಿ ದಾವತ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನು,
यात्रा जापान की इधर मेले ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಿಡಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಸೂರದಾಸ್ ಕೆ ಪದ್ ಈ ಕವಿತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಕವಿತೆ ಆಧುನಿಕ ಕವಿತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಗಹನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಯರ್ ಮತ್ಬನ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬನ್ನಿ ಸೂಕಿ ಡಾಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಶೋಧ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ 10 ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಲೆಸನು MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಸಲಿಯೇ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ 54 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಲೆಸನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ just you refer blueprint. So blueprint is so important for you. You want more marks? So उसके लिए blueprint क्या देखिए blueprint देखकर अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए क्या फायदा है आप लाभ में क्या रहेंगे आंख मूंद कर blindly without seeing blueprint you don't start your study. First you see blueprint, then you see model question paper, then you start your real study. So इस तरह से करने से आप हिंदी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले पाते हैं स्टूडेंट्स याद रखिए ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎರಡು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಧಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತೆಗಿತೀರ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಸೊ आज केवल क्या यही MCQ क्वेश्चन एक्स्ट्रा यानी मैंने खुद क्या निकाला हूँ और एक से क्या आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाऊंगा आइए MCQ क्वेश्चंस आपको या आपके सामने रखूंगा और पढ़कर भी सुनाऊंगा आइए स्टूडेंट्स ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಲೆಸನ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಜನ್ ಭಗತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ MCQ देन गंगा मैया से साक्षात्कार इल्लोंद केಳ್ತಾನೆ एक कहानी यहाँ भी इल्लोंद केಳ್ತಾನೆ चीफ की दावत इल्लोंद केಳ್ತಾನೆ आमेले यात्रा जापान की इल्लोंद केಳ್ತಾನೆ सूरदास के पद इल्लोंद केಳ್ತಾನೆ गहने पोयम इल्लोंद केಳ್ತಾನೆ कायर मतवन इल्लोंद केಳ್ತಾನೆ सूकी डाली इल्लोंद केಳ್ತಾನೆ प्रतिशोध इल्लोंद केಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 10 MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಸೂಕಿ ಡಾಲಿ ಈ ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ 25 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನೀವು 25 ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಶೋಧ ಡ್ರಾಮಾ ಮೇಲೆ ಏಕಾಂಕಿ ಮೇಲೆ 40 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆ 40ಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟರ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ राइटर नेम कूड़ा केळ्ताने। सो आइए अब आपको ये जो नए MCQ क्वेश्चंस निकाला हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर और क्वेश्चंस पढ़कर आपको समझाऊंगा। आइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, सुजान के खेत में क्या बरस रहा था? आंसर इज कंचन। कंचन मीन्स एक्चुअली गोल्ड होता है, सोना होता है, यहाँ पर सोना नहीं है, लाभ होना, अधिक लाभ पाना। देन सेकंड वन, किसकी चंद्रमा बलि थे? सुजान की। हैंड रैटिंग ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನನ್ನ हैंड रैटिंग ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ। सुजान के हाथ में कितने पैसे या रुपये आ गए? पैसे तो लिखिए, नहीं तो
रुपये तो याद रखिए। 2,500 2000 आर 2500 रुपीज। देन फोर्थ वन, सुजान के द्वार पर क्या जलने लगा? धूनी, धूनी मीन्स स्टोव या चूल्हा। फिफ्थ वन, किनका आदर सत्कार होने लगा? साधु संतों का। किसान को क्या चाहिए? रोटी और साग, साग मीन्स वेजिटेबल, तरकारी। सुजान को क्या मिल गए? चारों पदार्थ। ओके ना। सो ये 7 प्रश्न हो गए। और 8वां देखिए, सुजान महतो क्या हो गए? सुजान भगत हो गए। सुजान कितने गांव में सुपारी बंटी? 11 गांवों में। सुपारी बांटी मीन्स 11 गांव के लोगों को इनवाइट कर दिया खाने के लिए, दावत पर बुलाए। 10वां, शंकर क्या भरकर लाया? नारियल। किसका अनादर होने लगा था? सुजान का। कौन करवी काट रहे थे? सुजान। करवी मीन्स स्टूडेंट्स यू रिमेंबर ग्रास यानी घास, ಹುಲ್ಲು ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। सुजान के द्वार से निराश होकर कौन लौट गया था? भिक्षुक। देन 14th, भिक्षुक के चादर में कितने सेर अनाज डाला? 15 सेर। देन यू कम दिस साइड, किनके बीच साक्षात्कार चल रहा था? लेखक और गंगा मैया। क्या करने से चरित्र बनता है? सेवा। गिरा अनयन, नयन बिनु बानी का अर्थ क्या है? मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी दिए हैं। यानी गिरा अनयन, नयन बिनु बानी, यानी जीव को आंख नहीं होती है और आंख को जीभ नहीं होती है। आंख कभी बात नहीं कर सकती है और जीभ कभी देख नहीं सकती है। यह तुलसीदास का एक पद है। देन गंगा की बहन कौन है? कावेरी। गंगा नदी की बहन कौन है? कावेरी नदी है। मनुष्य के संपर्क में आकर किसने आत्महत्या की? सर्प, सर्प यानी स्नेक, सांप। मन्नू के पिता कितने विद्यार्थियों को घर में रखकर पढ़ाया है? 8 8 10 10 विद्यार्थियों को। बचपन में कौन काली और मरियल सी थी? मन्नू भंडारी। मां का आदर्श किनको ना, मां का आदर्श किनकी ना बन सका? मन्नू भंडारी। किनको ना बन सका आदर्श? मन्नू भंडारी को। देन 22, घर की लड़की के विवाह की योग्यता क्या थी? 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। मन्नू भंडारी किस स्कूल में पढ़ी थी? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में। और कॉलेज भी क्या वही थी? कॉलेज भी वही था। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर भीष्मा सहानी। घर का फालतू सामान कहाँ रखने लगे थे? अलमारी के पीछे, पलंगों के नीचे। मां को क्या पहनने के लिए श्यामनाथ कहा? सफेद कमीज और सफेद सलवार। मिस्टर श्यामनाथ के मुंह में क्या था? सिगरेट। मेम साहब क्या पहनी थी? काला गाउन, सफेद मोतियों का हार। पंजाबी लड़कियां और औरतें क्या बनाती है? लड़कियां गुड़िया
और औरतें फुलकारी बनाती है। श्यामनाथ की माँ कहाँ भेजने की बात की? हरिद्वार। देन यू कम दिस साइड। ममता कालिया जापान को कब रवाना हुई? 24 अक्टूबर 2010 को। कौन सा एयरपोर्ट लंबा था? नरीता। टप्स के निदेशक कौन है? प्रोफेसर फूजी ताकेशी। देन जापान की पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? 6,18,615। जापान के लोग किसके प्रिय हैं? अनुशासन प्रिय हैं। जी का अर्थ क्या है? मंदिर। ओके का अर्थ क्या है? ऊकी। थैंक यू वेरी मच जापान में क्या है? दूमो आरिगातो। हाँ और ना के लिए क्या है जापानी भाषा में? हाँ के लिए हाय और ना के लिए इया। घटापर्च का अर्थ क्या है? प्लास्टिक। घड़ियाल का अर्थ क्या है? मगरमच्छ, यानी मगरमच्छ का छोटा बच्चा। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म किनकी किताब पर बनी है? विकास स्वरूप। स्टूडेंट्स यू नो ये ऑस्कर अवार्ड फिल्म है स्लम डॉग मिलियनेयर। देन उद्धव कौन था? उद्धव कौन था? श्री कृष्ण का सखा और चचेरे भाई, चाचा का बेटा यानी कजिन ब्रदर भी थे। श्री कृष्ण के परम भक्त कौन थे? सूरदास। श्री कृष्ण किस नदी के किनारे खड़े थे? जमुना। गहने कविता के कवि कौन है? कुवेंपु। यानी अनुवादक कौन है? डॉक्टर विमला। किनके बीच संवाद चल रहा है? माँ और बेटी। कायर ना बनने का संदेश किसे कवि देते हैं? मनुष्य को। कायर मत बन कविता के कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा। स्टूडेंट्स इस तरह से क्या इतने प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए हूं। और जो सुकी डाली और प्रतिशोध है, प्रतिशोध और सुकी डाली एकांकी के पीछे जो प्रश्न दिए उन प्रश्नों के उत्तर आप लोग पढ़ लीजिए। और कुल मिलाकर एनुअल एग्जाम में 10 MCQ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप लोग डीप से क्या स्टडी करिए और डीप से स्टडी करके याद रखिए, और ऐसे करने से आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय कर्नाटक।